Now this next question, that is question 146, it is related to Doppler's effect. The question reads like this: two cars moving in opposite directions approach each other with a speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second. So you can say one car has the speed 22 meter per second and another one has the speed 16.5 meter per second respectively. The driver of the first car, so this is the car which is acting like source here because it is blowing a horn. The driver of the first car blows a horn, तो ये हो गया हमारा source, and second car will become listener. So you can see source is going towards listener, तो इसकी velocity को आप negative लेते हो, and if listener is coming towards the source तो इसकी velocity को आप positive लेते हो. Frequency 400 Hz है, इसकी frequency 400 Hz दी गई है. The frequency heard by the driver of the second car. Listener क्या frequency सुनेगा वो निकालनी है. It's a very straightforward question. आप इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो? फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स सी प्लस माइनस वी एल अपॉन सी प्लस माइनस वी एस. तो एज आई सेड यहाँ पे लिसनर की वेलोसिटी पॉजिटिव लिखी जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे सी प्लस 16.5 होगा. एंड सोर्स सिंस इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लिसनर, तो एज पर द कन्वेंशन इसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी. सो हियर इट विल बी 340 माइनस 22. यू अंडरस्टैंड? तो आप इसका इक्वेशन जो लिखोगे वो फ्रीक्वेंसी ये 400 हर्ट्ज है, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 340 प्लस 16.5 अपॉन 340 माइनस दिस 22. आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी एंड फाइनली यू विल फाइंड दैट द फ्रीक्वेंसी विल कम आउट टू बी 448 हर्ट्ज, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन दिया गया. So the correct option for this question will be fourth one, 448 Hz. So that was the answer to question 146. Now this question 147, this is related to simple harmonic motion. Here it says that a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. So straightforward इसकी amplitude 3 cm दे दी गई है. When the particle is at 2 cm from the mean position, that means x जिसको आप position कहते हो, उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर भी दे दी गई है. कह रहे हैं कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो आप? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लिखते हो आप ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स? ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, विच यू कैन ऑल्सो से ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t. टी क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. दिस इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एम्पलीट्यूड दिस इज पोजिशन. Here in this question, A amplitude has been given to be 3 cm दिया हुआ है, X 2 cm. Now it says that magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Now आपको acceleration की magnitude के equal इसको दिया गया है. Now what is the magnitude of acceleration? ये formula होती है omega square x. This is the standard formula. Now इन दोनों को आपने इसमें equate करना है. So now they are asking you what is the time period. So everything has been mentioned here. X की value 2 cm. ये 1 ओमेगा विल बी कैंसिलिंग 1 ओमेगा हियर, तो ये ओमेगा की वैल्यू निकलेगी. उससे आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो. इफ़ यू डू द कैलकुलेशन, टाइम पीरियड विल कम आउट टू बी 4π अपॉन अंडर रूट 5 सेकेंड. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3. सो विल बी मार्किंग ऑप्शन 3 फॉर दिस क्वेश्चन 147. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 148. Now this question 148, that is related to second law of thermodynamics. It reads, a Carnot engine having an efficiency of 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. So I will suggest that you should always make a block diagram, whether it is heat engine or refrigerator. You can follow the same notations. Let us suppose I am using notation 1 for higher values. Let us suppose this is T1, that means it's a higher temperature. And say you have T2, that means it is lower temperature. Heat involved here is Q1 and heat involved here is Q2. If you apply the arrow, then it will denote whether it is heat engine or refrigerator. Let us suppose it is heat engine, so arrow will be down. But the relative ratio will not be changing. This side is work. In case work is coming out, it will be like heat engine. In case work is going in, it will be refrigerator. You understand? So it says that it is the heat engine which is working as a refrigerator. So for both the things, the diagram will be same. मतलब अगर वो हीट इंजन है या रेफ्रिजरेटर है, डायग्राम आपकी सेम होगी.
रेशियो सेम होंगे. नाउ इज सेइंग इफिशिएंसी इज 1/10. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/10? 1/10 का मीनिंग है कि अगर ये 1 के रेशियो में है तो ये 10 के रेशियो में होगा, क्योंकि इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट. तो ये 1 और 10 दी गई है. वेरी मच ऑब्वियस कि अगर ये 10 होगा और ये 1 होगा तो ये रेस्ट ऑफ द हीट दैट इज 10 - 1 ये 9 के रेशियो में होगा. सो लोअर हीट दैट विल बी 9. हीट रिजेक्टेड अगर आपसे पूछेगा तो इट विल बी द रेशियो ऑफ 9. यू अंडरस्टैंड? नाउ इज सेइंग इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल. नाउ ये 1 जो है दैट हैज बीन गिवन टू यू इक्विवेलेंट टू 10 जूल. ये 10 जूल के इक्वल दिया हुआ है. देन दे आर आस्किंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर कौन सा है? ये. कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? Q2 दैट इज इन द रेशियो 9. तो ये अगर इसके 9 टाइम्स है तो 10 जूल कितने टाइम्स होगा? वो भी 9 टाइम्स होगा. हाउ मच विल बी दैट? दैट विल बी इक्वल टू 90 जूल. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 90 जूल. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. तो इस क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन 2 मार्क करेंगे एंड दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन 148. नाउ लेट अस स्विच ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 149.